Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. I am Saket, your English mentor, and in today's video we are going to talk specifically about those students who think that they are weak in English. If you are someone who thinks you are weak in English, then this video might be the one that changes your CLAT preparation and your entire journey, right? Because let me tell you something very clearly. Most of the students जो ये सोचते हैं कि सर मेरी English बहुत weak है. The fact is, it's not your English or comprehension that is actually so weak. Most of the times what we don't understand is possibly कि CLAT का actual demand है क्या, or maybe we are reading the wrong way, or maybe we are practicing बिना किसी structure के. We don't have any kind of structure or organization in practice. And to be very honest, CLAT does not require you to be a Shakespeare level English master, right? It requires smart reading, it requires sharp comprehension, and it also requires कि आप एक context में vocabulary को लेकर कितने aware हो, या how logically you understand the passage under pressure. So if you are someone who feels that grammar is poor, reading is poor, editorials समझ नहीं आते, RC के passages scare करते हैं, then या फिर ऐसा भी सोचते हो कि बाकी लोग मेरे से ज़्यादा better हैं, then this video is for sure for you. Do stay hooked till the end of this video. We look at a few advanced level and a few basic level fundamental things that we can do if we want to improve our English when it comes to your CLAT preparation. Let's have a look. The very first thing and the very first point here is that अगर हम CLAT की बात करें, so it's all of us are aware that it's a 120 marks का game, and out of 120 marks, if we just try to eliminate quantitative techniques, it leaves you with 108 questions, 108 marks. And out of 108 marks, roughly English as our reading comprehension section is 20% of your total marks. That's 24 questions. And if I take other subjects, other sections also into consideration, that's 108 marks. Out of which you have English, 24 questions, logical reasoning, legal aptitude, and even general knowledge. अगर आप last 2 years के trend देखोगे, so you will notice that even general knowledge में we have got passages which require some kind of comprehension and comprehension abilities. So that is the official or a fundamental base कि why you need to be, if not Shakespeare level pro, then at least a basic level understanding of how to comprehend. The next point here is कि अगर हम ये sections देख लें, like if we start with English में आपको CLAT पूछता क्या है? CLAT asks you कि vocabulary, contextual vocabulary, किसी context में, किसी संदर्भ में, what is the meaning or what is the essence of that particular word, or why is the word used there? What is the application of the word? If you talk about logical reasoning or reading comprehension, you have an overlap in the sense that you will find passages there, verbal reasoning के passages जैसे reading comprehension में आते हैं, वैसे ही you will find passages in logical reasoning as well. Yes, you have additional concepts, but a fundamental thing that is common or that binds English and logical reasoning is the presence of passages. Then come to legal aptitude and general knowledge. Although they are there to test your understanding of legal concepts, but again it requires you to comprehend well. Then you have general knowledge and quantitative. General knowledge में भी अब RC level और RC type के passages आने लगे हैं. And if we talk about quantitative techniques, तो quantitative techniques के passages usually होते छोटे, but then still थोड़ा सा level of comprehension वहाँ पर भी required है. So again saying not a Shakespeare level English master, but still इतना comprehension या इतनी reading abilities या English as a skill तो चाहिए that we can at least ace this exam. Now, if you talk about English and if you talk about the presence of English throughout these 4 sections, or if you take G quantitative, then it's 5. So ये एक foundational skill है. It is, or no, I would rather say ना कि it's not just a foundational skill, it's a basic life skill or a survival skill now. How to start? Let's look at that. सबसे पहला foundation week, that is your first month of preparation. First month of preparation में आपके दिमाग में हजारों question हो सकते हैं, like where to start, how to start, what to do, how to continue. सबसे पहली चीज़ और सबसे basic चीज़ that you should be developing is reading habit. Reading habit के लिए the best friend that you can get is your newspaper. Newspaper में भी either the Hindu or the Indian Express, totally on you. शुरुआत कैसे करें? शुरुआत में please understand कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक एविड रीडर या प्रो रीडर रहे हों लाइफ में, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने लाइफ में रिसेंटली ये सोचा हो दैट वी हैव टू गो फॉर CLAT. हाउ टू डू और हाउ टू स्टार्ट इज स्टे मोटिवेटेड फर्स्ट थिंग, और कुछ ऐसा उठाओ ना विच मेक्स यू ऑल्सो फील मोटिवेटेड, नॉट समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली extremely irritating as well and extremely something that demotivates you to the core.
शुरू करो, begin with 20 minutes of daily reading initially and then take it to 45 and 60 gradually, धीरे धीरे. पढ़ना क्या है? Since we have logical reasoning में you will find editorials, English में you will find fiction and non-fiction passages. So scope और genre of passages बहुत diverse है. And in order to ace it, in order to be familiar with it, please ensure कि जब आप newspapers पढ़ रहे हो, और न्यूज़पेपर ही नहीं, इनफैक्ट न्यूज़पेपर के अलावा कोई भी और सोर्स यूज कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग पैसेजेस व्हिच कम फ्रॉम पॉलिटिक्स, लॉ, इकोनॉमी, साइंस, फिलॉसफी. स्टे exposed to all the diverse genres that you have, so that just in case you find any such thing in the actual exam, or if you find it in your day-to-day practice as well, it doesn't become something that's a tough nut to crack. Second is active reading. अब देखो, एक सेकंड प्रॉब्लम जो फेस करोगे ना, हम लोगों ने पॉसिबली शायद हो सकता है कुछ दिन पहले डिसाइड किया हो या कुछ हफ्ते महीने पहले डिसाइड किया हो दैट वी हैव टू गो फॉर क्लैट. और पहली चीज़ ऑफ कोर्स कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे माइंड में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारा डीमोटिवेशन होगा माइंड में. टैकल कैसे करना है? एटलीस्ट इफ यू आर सिटिंग फॉर लेट्स से 20 or 30 minutes, उस वक्त फोन साइड, एवरीथिंग साइड, योर होल फोकस और सोल फोकस शुड बी देयर ऑन व्हाट यू आर रीडिंग. एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो वी डोंट अंडरस्टैंड. वी ट्राई टू रीड 10-15 words, 5-10 lines at once, and then we realize कि कुछ समझ ही नहीं आया. इस केस में क्या करना है? इसीलिए we precisely said कि we should start with 20 minutes of daily reading. छोटा रीडिंग, कंसिस्टेंट, स्मॉल एंड टाइनी बेबी स्टेप्स में हम डेवलप करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा. करना क्या है? एक्टिवली रीड करो. Don't just wander your mind somewhere. Your mind is somewhere. Your mind is thinking of, let's say, what to have in dinner, and your eyes are on your newspaper. ऐसा नहीं. Your eyes, your mind, everything should be there on your newspaper. Actively पढ़ो. और एक्टिवली पढ़ने के साथ साथ ना एक और स्किल डेवलप करना. Take a piece of pencil, and when you are reading the passage, make sure कि आप वहाँ पे साइड में ना एक छोटे से 1 या 2 keywords लिखते जाओ कि आपने समझा क्या. What this will help you with is कि when you try to summarize your passage, it will make you very comfortable with the passage, first thing. दूसरी और सबसे important RC skill that you will develop is understanding कि passage था क्या, what was the passage talking about, author बोलना क्या चाह रहा था. And then so on and so forth, we will develop with other skills like main idea, tone, purpose, etc. दूसरी चीज़, that is vocabulary foundation. Vocabulary foundation के लिए please understand, CLAT आपसे कभी भी out of the context, out of the passage words या words की meaning नहीं पूछता है. What CLAT does is it gives you a passage. Passage से कोई word उठा लिया जाएगा, उसके synonym, antonym, anything. And वहाँ पे the basic skill that you need to require is कि आपको इतनी clarity होनी चाहिए. Even if you are seeing the word for the first time, आपको इतनी clarity होनी चाहिए कि if I need to crack this word, the only thing that I need to do is कि possibly 1 or 2 lines before it, 1 or 2 lines after it, so that जो भी information का flow है ना, आप उसको connect कर पाओ. And once you connect it, once you try to crack that, it is for sure that आप word का sense तो at least समझोगे. एंड अगेन अ वेरी बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि अब आप एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो ना, उसी को उठाओ, उसमें वॉट एवर डिफिकल्ट वर्ड यू फाइंड, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी AI टूल और गोइंग टू गूगल और एनी डिक्शनरी, सबसे पहली चीज़ क्या करो ना, प्लीज़ रीड अ सेंटेंस और 2 बिफोर इट, अ सेंटेंस और 2 आफ्टर इट, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द वर्ड. इट विल फॉर श्योर हेल्प यू. इससे होगा क्या, लाइक कंबाइन ऑल दीज थिंग्स, नथिंग हैज़ टू बी डन इन आइसोलेशन, कंबाइन ऑल दीज थिंग्स. And by the end of 1 to 4 weeks, you will have at least 70 new words per week, which is almost 280 words in a month, which is a good vocabulary base if you want to expand. उसके अलावा mental summary बनाना शुरू करोगे ना, तो when you start practicing your booklets, तब आपके दिमाग में passages भी एक gist जैसा चलते रहेंगे. You will start understanding the passage in a summarized manner. You will understand what the author actually wanted to convey. और रीडिंग टाइम जो है वो हम ग्रेजुअली एस्केलेट करेंगे फ्रॉम 20 to 30, 35, 40, so on and so forth till 60 minutes. Next is RC के core techniques. Now since we are talking about English as a basic skill, अभी तक हमने बात की how we can use it for different other subjects also like reading comprehension, English, फिर CR, GK, everything. अब हम बात करेंगे कि अगर कुछ पैसेजेस पढ़ रहे हैं, कोई पीस ऑफ टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, सो व्हाट इज द बेसिक स्किल और व्हाट इज द बेसिक टेक्निक जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए. द वेरी फर्स्ट थिंग इज सिंप्लीफाई करना सीखो पैसेज को. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना कि स्टूडेंट्स रीड अ लॉट ऑफ वर्ड्स टुगेदर, अ फ्यू सेंटेंसेस टुगेदर, एंड देन क्योंकि रीडिंग इज अ वेरी नॉवेल फिनोमेना फॉर देम, एटलीस्ट सम ऑफ देम, तो हम बहुत ही वी गेट जोन्ड आउट. Sometimes we don't really understand कि यहाँ पे बात हो क्या रही है.
एंड दैट्स वन पॉइंट ऑफ डीमोटिवेशन. आप डीमोटिवेशन होते हो एंड देन वन फाइन डे यू वेक अप एंड यू थिंक व्हाट एम आई इवन डूइंग इन माई लाइफ. एक काम करता हूँ, प्रिपरेशन ही छोड़ देता हूँ, या फॉर दैट मैटर रीडिंग छोड़ देता हूँ. एंड सम ऑफ यू एक्चुअली डू इट, सम ऑफ यू स्किप रीडिंग द न्यूज़ पेपर्स, और फिर किसी एक दिन यू मीट योर मेंटर एंड देन यू अंडरस्टैंड कि ओ आई लेफ्ट माई न्यूज़ पेपर फॉर एटलीस्ट 10, 15, 20 days नाउ. अब तो फ्लो भी टूट चुका, अब तो जो मेरी प्रैक्टिस आ चुकी थी वो भी टूट चुकी. नाउ व्हाट टू डू? सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डीमोटिवेटेड और डिस्ट्रैक्टेड, प्लीज अंडरस्टैंड, रीड इन चंक्स. छोटा पढ़ो, डेली कम पढ़ो, डेली पढ़ो, कम पढ़ो बट डेली पढ़ो. Don't do it like this that instead of running 10 meters every day, you are trying to run 500 meters on one single day. कोई फायदा नहीं. Stay consistent. बड़े पैसेजेस हैं, बहुत डिफिकल्ट पैसेजेस हैं, उसको छोटा छोटा तोड़ कर पढ़ने की कोशिश करो. चंक में पढ़ो, like 2 or 3 words at once, 4 words at once, not the entire sentence. Understand what those 3 or 4 words mean, फिर आगे बढ़िए, फिर समझिए. Now when you do it consistently, एक टाइम ऐसा आएगा when you'll get comfortable with the passage. Then try to, again, as we saw in the last slide also, summarize karna seekho. You make a gist of it in your mind, so that whatever you are reading, instead of understanding, instead of focusing on all the short small points, some the supporting details, आपको at least passage के बारे में clarity मिलती रहे. ठीक है. The third point is identifying the theme or the main point. अब हर passage का ना, हर passage का एक underlying idea होता है, हर passage का एक underlying theme होता है. Now, all these things that you are listening to might seem like some rocket science, but एक बार please trust me, when you start reading, when you start getting comfortable, ये main idea, theme, underlying idea, ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे clear होता रहेगा. But yes, एक चीज़ ensure करना that you have these things in the back of your mind, that yes, when I am reading, when I am devoting my 45 minutes to 1 hour specifically to reading, these are the skills जो मेरे को साथ में develop करनी है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द स्कोप. कभी क्वेश्चंस मिले, कभी किसी मॉक में आपने क्वेश्चंस देखे, क्लैट में क्वेश्चंस देखे, प्लीज अंडरस्टैंड कि पैसेज का एक स्कोप होता है, एक लिमिटेशन, एक दायरा होता है. स्टे विद इन दैट. नो मैटर यू आर अ स्कॉलर एट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं. कीप योर नॉलेज असाइड. जस्ट वॉट एवर यू हैव रेड इज वॉट यू नो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. देन अपने जनरलाइजेशन, अपनी बायसनेस, ये सब नहीं यूज़ करनी है. ये सब वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं विच विल मेक यू lose a few marks, whether it be a practice session, whether it be your mocks, or whether it be the actual examination. और again, one more important point is actively पढ़ना. दिमाग कहीं wander कर रहा हो, take a break. 2 मिनट ब्रेक ले लो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, थोड़ी देर बाद पढ़ो. बट ऐसे मत पढ़ना कि दिमाग कहीं और है और नज़र कहीं और. Not that way. Next is some advanced RC strategies. अब देखो, वीक 1 to 4 के बाद जब आप थोड़े बेटर होने लगोगे, थोड़ी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज़ बेटर होने लगेंगी, जब आप थोड़े सिंप्लीफाइंग ऑफ द पैसेज, अंडरस्टैंडिंग द स्कोप, एक्टिव रीडिंग, वोकैब ब्रेकिंग, समराइजिंग, कॉम्प्लेक्स पैसेजेस को समझने के लिए चंकिंग, ये सब शुरू करोगे ना, उसके बाद उसके बाद come to the question वाला part. Now that you have aced your reading, now that you have at least understood कि reading करते कैसे हैं, passages समझते कैसे हैं, अगला step should be कि हम questions के understanding पे आते हैं कि what is the actual demand of the questions that you get in that particular subject. For example, if I talk about RC, तो हमारे पास main idea होता है, हमारे पास inference होता है, vocabulary, contextual vocabulary होता है, we have fact based और specific detail questions also. इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हो सकता है कि आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस या स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस पहले दिख जाए. गो इजी, मार्केट फर्स्ट. धीरे धीरे रीडिंग करोगे, रीडिंग एज अ स्किल डेवलप होगी. वही रीडिंग के स्किल के डेवलपमेंट का एप्लीकेशन शुड कम टू योर मॉक्स और टू योर क्लैट ऑल्सो. तो मेन आइडिया, जब आप एडिटोरियल या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे या कोई और सोर्स पढ़ रहे होगे, वहाँ से मेन आइडिया एक्सट्रैक्ट करना सीखना, वहीं से वोकैबुलरी को एक्सट्रैक्ट करना सीखना, वोकैब की मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना सीखना, वहाँ से आप इन्फरेंस एंड एनी अदर थिंग लाइक स्ट्रेंथ एंड वीक एंड अजम्पशन इन्फरेंस, एनीथिंग कैन बी टॉट और एनीथिंग यू कैन टीच योरसेल्फ फ्रॉम देयर. इसके बाद आता है दूसरा, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न व्हेन यू गेट इनटू दिस. और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर हो जाती है, इज स्पीड और एक्यूरेसी. अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, यू विल सी योर फ्रेंड्स आर स्कोरिंग 120 में, लेट्स से 107 और 8 इन मॉक्स, सम आर स्कोरिंग 90, 80 एंड यू आर समवेयर अराउंड 50, 60 में स्टक हो.
आई अंडरस्टैंड एक पीयर प्रेशर भी होता है दैट पीपल आर गेटिंग बेटर, मैं यहाँ पे स्टक हो गया हूँ, मैं यहाँ पे रुक गया हूँ. प्लीज़ अंडरस्टैंड सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपने अपने बैकग्राउंड हैं. What you need to focus on कि after every successive mock you should see some progress. Your analysis should take you somewhere positively, in the positive direction, of course, not like a demotivated person, not like a demotivated student who is just going downhill, not like that. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस मेंटेन रखो. डोंट गेट अंडर दैट प्रेशर, डोंट गेट अंडर दैट प्रेशर जहाँ पे यू कमिट मोर मिस्टेक्स दैन द राइट्स दैट यू शुड एक्चुअली बी डूइंग. नेक्स्ट, अब अभी तक हमने बात की अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, द क्वेश्चन टाइप्स, और कैसे वो क्वेश्चन टाइप्स को एज अ स्किल हम एडिटोरियल्स या किसी भी रीडिंग प्रैक्टिस से अपने इंग्लिश को बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगला पॉइंट इज कि स्पीड रीडिंग करे कैसे. रीडिंग तो कर रहे हैं, रीडिंग एक बेसिक स्किल है, समथिंग दैट इज ऑलमोस्ट द 90% चंक ऑफ योर एक्चुअल एग्जाम. हाउ टू गेट बेटर एट इट. सबसे पहली चीज़, लाइक अभी थोड़ी देर पहले आई सेड, इफ़ यू हैव अ लॉन्ग पैसेज, इफ़ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स पैसेज, और इवन फॉर सिंपलर पैसेजेस, don't try to read a lot at once. You will end up getting baffled. तुम्हें आधी बातें शायद ना समझ में आए, और that baffling will take you somewhere to getting burned out, getting zoned out, and the last step, that is preparation ही छोड़ दो, नहीं पढ़ना है. ऐसा मत करना. चंकिंग करो, 3-4 वर्ड्स उठाओ, 3-4 वर्ड्स समझो, आगे बढ़ो. अगेन 3-4 वर्ड्स, आगे बढ़िए. Once you are done like that with a particular paragraph, टेक अ पीस ऑफ पेपर और टेक अ पेंसिल, साइड में कहीं पर लिख लो क्या समझे, सो दैट व्हेन यू कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ यू एटलीस्ट हैव एन आइडिया टू रिलेट बैक टू और गेट बैक टू. इससे क्या है ना, आपकी डे टू डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, डे टू डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द paragraph of the passage will become better. And once you crack the idea of small chunks of the passage, you will combine it and come to a basic concept also, which is the main idea, which is the purpose, which can also help you solve other RC conceptual questions. ठीक है ना. तीसरी चीज़ है सब वोकलाइजेशन. सब वोकलाइजेशन, आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग हैं, व्हेन वी डोंट नो अ लॉट अबाउट रीडिंग, तो हम सब वोकलाइजेशन करते हैं बिकॉज वी थिंक व्हेन वी आर स्पीकिंग विद इन आवर माइंड, हम अपने माइंड को सुना रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, सो वी आर गेटिंग बेटर एट इट. सुनने में लगता है कि हाँ वी माइट, बट इन द एक्चुअल सेंस इट डिसरप्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, इट डिसरप्ट्स योर flow, it disrupts the conceptual clarity that you could actually seek without sub-vocalization. So sub-vocalization या दिमाग में अपने उस words को बोलना या सुनना, please don't do it. बहुत ही distracting हो सकता है. So practice drill है क्या कि जब शुरुआत में when you just begin your preparation, so don't put in a lot of pressure on yourself. Go slow, go consistent, daily थोड़ा थोड़ा, but please do it. शुरुआत में क्या करना, pick 2 comprehension passages, keep it every alternate day so that एक monotony भी ना रहे. First day RC, maybe second day something else, third day again RC, something like that. So आप ऐसे 2 comprehension passages उठा सकते हो. इसके अलावा you are already doing your reading part. So all in all, हर चीज़, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में काम वैसे भी नहीं कर रही है. एक जगह पे you are reading, एक जगह पे you are understanding the concepts, applying it to the newspaper, और इन दोनों चीज़ों का जो एप्लीकेशन है वो आप अपने प्रेपरेशन में, अपनी बुकलेट में वैसे भी यूज़ कर रहे हो. दैट इज़ वाई यू आर सॉल्विंग 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऑल्सो. अब सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं, पिटफॉल्स क्या होते हैं, वो भी समझिए. हर वर्ड को इंडिविजुअली रीड करना, वो भी नहीं बोला. आई सेड 3 or 4 वर्ड्स टुगेदर, 3 or 4 वर्ड्स टुगेदर, सो दैट वंस द फ्लो इज देयर इन योर माइंड, वंस द आइडिया इज देयर इन योर माइंड, यू मूव अहेड. हम आगे और बेटर होते रहेंगे, बट इनिशियली हम हर एक वर्ड पे लाइक आई एम अ गुड बॉय, इतना आई एम अ गुड बॉय, डोंट डू इट लाइक दैट. अंडरस्टैंड कि टाइम बाउंडेशन भी तो है अपने पास. वी हैव टू गेट बेटर विद टाइम ऑल्सो. ठीक. सेकेंड इज सब वोकलाइजेशन, एज वी ऑलरेडी रेड. देन थर्ड इज रिग्रेशन. रिग्रेशन क्या होता है, हम पैसिव रीडिंग करते हैं. वी रीड द पैसेज, आवर माइंड इज समवेयर एल्स, वी रिग्रेस, वी गो बैक टू द पैसेज. हमने क्वेश्चन में कोई कीवर्ड देखा, अब क्योंकि पैसेज पढ़ते वक्त हमें पैसेज शायद समझ नहीं आ रहा था, या हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे, या वी वर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, सो हम वो कीवर्ड पैसेज में वापस ढूंढते हैं और ढूंढने पे नहीं मिलता, सो वी स्टार्ट रीडिंग द पैसेज अगेन. या पॉसिबली कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया जहाँ पे पैसेज की पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, सो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट वी डू इज कि वी गो बैक टू द पैसेज, हम पूरा पैसेज दोबारा पढ़ते हैं. इसको रिग्रेशन कहते हैं. प्लीज अवॉइड दैट, एंड द बेस्ट वे टू अवॉइड दैट इज कि एक्टिवली पढ़ो. दिमाग शुड बी देयर इन योर टेक्स्ट ओनली, and avoid any kind of distraction, anything that
makes your mind go haywire, please remove it, especially your cell phone. The next is vocabulary building. Vocabulary building के लिए क्या करना है, कुछ simple practices हैं. पहला is of course contextual vocabulary. जो भी पढ़ रहे हैं, pick words there. पहला practice is let me remind you, not to go to any AI tool, not to go to Google, not to go to any dictionary app first. क्योंकि जब तक आप इसको एज अ डेली स्किल डेवलप नहीं करोगे ना, contextual vocabulary को ब्रेक करना, let me remind you, it is not going to help. क्लैट के दिन या एलिट में यू आर नॉट गोइंग टू हैव योर सेल फोन, योर डिक्शनरी, योर चैट GPT, योर AI, एनीथिंग विथ यू. The only thing that will be there with you is your brain. So kindly train your brain on a daily basis, please. फिर करना क्या है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, यू कैन गो फॉर इकोनॉमिस्ट फॉर एनालिटिकल vocab. You can go for books like Word Power Made Easy. There is also one more which is 6 Weeks to Words of Power by Wilfred Funk. You can use these books. इसके अलावा आपके मॉक्स सबसे बेस्ट सोर्स हो सकते हैं, आपका न्यूज़पेपर एडिटोरियल, न्यूज़पेपर आर्टिकल सबसे बेस्ट सोर्स हो सकता है. यूज़ दीज सोर्सेज. बट येस, बुक्स के अलावा जो भी लाइक वर्ड पावर मेड ईजी और एनी अदर वोकैबुलरीज बुक के अलावा जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड should not be any external help, should be your brain, should be the prior words, the prior paragraph, or the upcoming sentence. That is it. That is the only thing that you need to do. होगा क्या कि you will come up with 35-70 words, maybe end the month with 200-250 odd words. ठीक. नेक्स्ट चीज़ कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो नहीं करने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है. शुरू करोगे slowly and steadily, you will learn anyways. But as a mentor, my task is to tell you in advance कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. पहला प्रॉब्लम इज़ ओवर थिंकिंग. हम किसी टॉपिक के बारे में बहुत जानते हैं, हम अपनी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, एंड दैट्स व्हेन वी विल गो रॉन्ग इन क्वेश्चंस. हम रिग्रेशन करेंगे, माइंड कहीं और है, पढ़ कहीं और रहे, हम पैसेज पे की पैसिव रीडिंग करेंगे, एक्टिव रीडिंग करेंगे ही नहीं. वी विल गो बैक एंड रीड अगेन. अनदर बिग चैलेंज एंड समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. दूसरा इज इग्नोरिंग ऑथर्स इंटेंट. अब ऑथर का इंटेंट, ऑथर का पर्पस एक चीज़ होती है, ऑथर किसी और को कोट कर रहा है इज़ अ डिफरेंट थिंग. डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू थिंग्स. ऑथर किसी और को भी कोट कर सकता है, दैट इज़ व्हेन द ऑथर बिकम्स न्यूट्रल. ऑथर अपनी कोई राय दे रहा है, दैट इज़ व्हेन द ऑथर इज़ यूजिंग हिज ओपिनियंस. कैन बी एनीथिंग, कुड बी अप्रिशिएटिव, कुड बी एनीथिंग पॉजिटिव, कुड बी एनीथिंग नेगेटिव, सर्टेनली नॉट न्यूट्रल. देन डिफिकल्ट पैसेजेस को स्किप कर देना. अगर कुछ ऐसा है विच इज़ मेकिंग यू फील डीमोटिवेटेड, कुछ ऐसा है विच सीम्स टू बी डिफिकल्ट, उसको स्किप करना इज़ नॉट द सोल्यूशन. कब तक स्किप करोगे? वॉट इफ़ यू कम अक्रॉस दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर topic or genre in the actual exam? Do you have the option of skipping it? So don't go for it. Face difficult passages also. अपने comfort zone के बाहर आओ ना please. And then last one, that is speed without accuracy. सिर्फ guess work नहीं करना है. guess work करने से वैसे भी एग्जाम नहीं होगा. होगा कैसे? कि स्पीड और एक्यूरेसी का एक फाइन बैलेंस बनाकर चलते हैं कि विद टाइम वी विल इंक्रीज द अटेम्प्ट्स, बट एट द सेम टाइम इंश्योरिंग कि अटेम्प्ट्स बढ़ाने के प्रेशर में मेरा एक्यूरेसी कम ना हो. ठीक है, अ लिटिल बिट ऑफ डेविएशन इज फाइन गिवन दैट आपके मॉक्स के, आपके क्वेश्चंस के, पैसेजेस का लेवल भी चेंज होता रहता है. दैट इज ऑफ कोर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट स्पीड एक्यूरेसी के साथ आनी चाहिए, उसके बिना नहीं आनी चाहिए. राइट? एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज मिस्टेक्स? दैट इफ यू आर ओवर थिंकिंग, पॉसिबली 2 से 4 मार्क्स वहाँ चले जाएंगे. इफ यू आर अटेम्प्टिंग इवन 2 or 3 क्वेश्चंस रॉन्ग. रिग्रेशन में आप पैसेज पे बार बार वापस जाओगे तो स्पीड खराब होगी तो पैसेज क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएंगे, पैसेज इनकम्प्लीट रह जाएगा और सेक्शन भी छूट सकता है, विच इज़ अ वेरी यूजुअल थिंग दैट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. स्किपिंग पैसेजेस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, विच मीन्स पैसेज स्किप किया, कई बार सेक्शन भी स्किप हो जाएगा. जो मार्क्स आप एक्चुअली में ग्रैब कर सकते थे, यू आर नॉट एबल टू डू इट. अब ये जो मेरा 90 डे और द फर्स्ट वीक एंड देन द सेकेंड एंड थर्ड मंथ्स, दैट इज week 1 to week 4, then that is the first phase. उसके बाद the next 2 months what to do? पहला इज फाउंडेशन, जहाँ पे डेली रीडिंग करनी है, vocab बिल्डिंग करनी है, ग्रामर, RC प्रैक्टिस. दूसरा इज स्किल बिल्डिंग, इज जहाँ पे आप डेली रीडिंग करो, इस 20 to 30 मिनट्स की रीडिंग को टेक इट अप टू 45. स्पीड रीडिंग सीखो, RC प्रैक्टिस करो, 2 पैसेजेस डेली, फ्रॉम 2 पैसेजेस ऑल्टरनेट डे और 1 पैसेज डेली, टेक इट टू 2 पैसेजेस डेली. और जब थोड़ा सा आप ज़्यादा बेटर हो जाओ, ज़्यादा स्किल्ड हो जाओ, you can take up full mocks, you can take up the entire
let's say आपके booklets हैं, you can take up the entire set, that is 4 passages जो आपके actual CLAT में आते हैं या actual exam में आते हैं. You can do it that way. But yes, remind yourself that it has to be done in a phase. If you are someone who is extremely new to this entire concept, this entire examination and reading or English as a whole, please make sure कि go steady, go slow, but be consistent with whatever you are doing. ठीक है? और the last point, डेली प्रैक्टिस सोर्सेज क्या रखने हैं? हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, द एडिटोरियल्स vocab के लिए भी, लीगल एक्सप्रेस और क्लैट एक्सप्रेस फॉर योर जीके रिलेटेड रीडिंग, प्रीवियस ईयर क्लैट पेपर जब आपको पेपर की स्ट्रैटेजी और पेपर का एक पैटर्न समझना हो, एंड मॉक एंड प्रैक्टिस बुकलेट्स फॉर गेटिंग बेटर डे बाई डे. सो रिमेंबर व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑन क्लैट on the day you have क्लैट एंड what you actually do in your mocks, ये उस दिन डिसाइड नहीं होते हैं when you go and wake up and give your mocks. ये उस दिन डिसाइड बिल्कुल नहीं होता है. This is decided on the other 24-25 days, what you do in those days. So please make sure that you are using those days to the best of your advantage. ठीक है ना? And for all my friends, for all my students who are watching this video and who stayed till the end of this video, please remember कि English या reading is a basic skill. At least for the profession that you guys have chosen, at least for the exam that you guys have chosen, it is a skill. And this is such a skill जो आपको आने वाले आपके करियर में भी definitely help करेगा ही. And consistency versus intensity, बहुत सारा कुछ एक दिन is not helpful. Small chunks, small things daily, little baby steps daily is much better than doing a lot of things at once. तीसरी and चौथी चीज़, quality over quantity, and every passage is a practice. Whatever you're reading purpose के लिए हो, whatever you're reading and solving, whether it be for practicing the questions, please make sure that you're getting better every day. And just in case you have any other doubt, any other question, or any other topic that you feel like we should come up with a video on, please make sure to like, share, and subscribe, and drop that particular topic in the comment section below. Thank you.